हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष चावला, मैक्स लेक्चरर इन रेजोनेंस एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं एनएमटीसी जूनियर का पेपर, जो कि 12 फरवरी 2022 को हुआ था। ये पेपर ऑनलाइन मोड में हुआ था। दिस पेपर कंटेन 30 क्वेश्चंस एंड 2 आवर ड्यूरेशंस। ये पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट पार्ट जिसमें एमसीक्यू थे, 15 क्वेश्चंस एमसीक्यू थे। इफ यू आप इसको करेक्ट करते हो तो +1 मार्क्स, और अगर आप इसको गलत करते हो तो -1/2 नेगेटिव मार्किंग थी। सेकंड पार्ट था फिलिप्स टाइप्स, जिसमें अगर आप सही करते हो अगेन 15 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। अगर आप सही करते हो तो +1 मार्क्स, अगर आप गलत करते हो तो -1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। So the first question is, in an arithmetic progression, the nth term is Tn and T1 plus T3 equal to T4 minus 2, T6 plus T4 equal to T11 minus 7। तो यहाँ पे बेटा Tn जो है वो nth term of an arithmetic progression रिप्रेजेंट कर रही है, और nth term of an arithmetic progression का हम फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज a plus n minus 1 into d, जहाँ पे a आपकी फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करती है, d आपका कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, so we can write this equation as T1, that is a, plus T3, that is a plus 2d, which is equal to T4, that is a plus 3d minus 2. So here a and a get cancelled, so we are getting a minus d is equals to -2. This is our first equation. Now T6 means a plus 5d, T4 means a plus 3d, which is equal to T11, that is a plus 10d minus 7. So again a and a get cancelled, so we are getting a plus 5d plus 3d, that is 8d minus 10d. So we are getting minus 2d here, minus 2d equal to -7. So this is our second equation. Now let's say this is our first equation and this is our second equation. If I subtract the second equation from the first one, sign get changed, minus plus plus, a and a get cancelled, so minus d plus 2d will get d, minus 2 plus 7, that is 5. So the value of d comes out to be 5. Now put the value of d equal to 5 in this first equation. So a minus 5 equal to -2. So the value of a is -2 plus 5, that is +3. So the value of a is 3. Now we need to find the 2021 term. So T 2021 term is nothing but a plus 2020d, and the value of a and d are 3 and 5. So in place of a I am writing 3, in place of d I am writing 5. So on solving we are getting 10,103. 10,103, that is option number A will be the correct answer. Okay students, we are coming to the next question. In this question we have given a right angle triangle in which hypotenuse is AB. So here this is our right angle triangle in which AB is the hypotenuse. So it means angle C is 90 degree, और यहाँ पे हमें given है कि P is the midpoint of AC and Q is the midpoint of BC. Okay, so we need to find the value of AQ square plus BP square divided by AB square. Now first of all we solve for AQ square. So here AQ square. So in this triangle ACQ I can apply the Pythagoras theorem. So I can say that AQ square is nothing but AC square plus QC square. QC is nothing but half of BC. So we can say that QC square is nothing but BC by 2 the whole square. So you can say BC square by 4. So this is our AQ square. Now BP square. So you can apply the Pythagoras theorem in triangle BPC. So BP square is nothing but BC square plus PC is nothing but half of AC. So PC square is nothing but AC by 2 the whole square, which is AC square by 4 divided by AB square. So here AC square plus AC square by 4, it will give you 5 by 4 AC square. BC square by 4 plus BC square by 4, again 5 by 4 BC square. We can take 5 by 4 common,
So AC square plus BC square. If you observe in this triangle ACB, you will find that AC square plus BC square is nothing but AB square. So this can be replaced by AB square. Okay. So now AB square and AB square get cancelled. We only left with 5 by 4. So the value of this given expression comes out to be 5 by 4. That is option number C is the correct answer. Okay students, we are coming to the next question. In this question हमें ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू जिसके जीरोस 2:3 के रेशियो में है और हमें पी स्क्वायर बाय क्यू की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के जो जीरोस है वो हम अज्यूम कर लेते हैं 2 अल्फा एंड 3 अल्फा, क्योंकि यहाँ पे जीरोस का रेशियो 2:3 दे रखा है एंड वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट दैट इज फर्स्ट रिलेशन इज सम ऑफ जीरोस दैट इज 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा is equals to minus times the coefficient of x that is minus p divided by the coefficient of x square that is 1. So we are getting 5 alpha equal to p. So the value of alpha is p by 5. Okay. Now the second relation is that is product of zeros that is 2 alpha into 3 alpha is defined as the constant term that is q divided by the coefficient of x square that is 1. So we are getting 6 alpha square equal to q. And the value of alpha is p by 5, so 6 p by 5 the whole square equal to q. So we are getting 6 p square by 25 equal to q. So we can say that p square by q is nothing but 25 by 6. So the value of p square by q is 25 by 6. That is option number A is the correct answer. Okay students, we are coming to the next question. In this question we have given that tan theta minus cot theta की वैल्यू हमें m दे रखी है, cos theta plus sin theta n दे रखा है और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए पहले देखिए tan theta को मैं लिख लेता हूँ sin by cos और cot को लिख लेता हूँ cos by sin. That is our m. Now I take the LCM. मैंने इसका LCM ले लिया, ऊपर आएगा बेटा sin square minus cos square. So that is value of m. Okay. And क्वेश्चन में हमें n दे रखा है, that is n is nothing but sin plus cos. Okay. Now we are putting these values in this given expression. So here first of all m square. So ये हमारा m है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin केस का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ n स्क्वायर माइनस 1. द वैल्यू ऑफ n इज sin प्लस cos. सो sin प्लस cos का बेटा स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 1 करेंगे, फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे. चलिए यहाँ पे बेटा अपन इसका एलसीएम लेते हैं. नीचे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर की पावर 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर. ओके, यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. और देखो बेटा हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है ना, तो ये 1 इस माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा. सो हियर देखिए यहाँ पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिखा हुआ एक तरह से, तो इसको अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको अपन, है ना, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 2 साइन कॉस का स्क्वायर करेंगे तो बेटा आएगा 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर. देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल, और हमें मालूम है कि देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और 1 into 4 करोगे तो 4 आएगा. तो इसका मतलब है कि द वैल्यू ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन इज कम आउट टू बी 4. सो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी सही है. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x1 और x2 बेटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमें x1 बाय x2 की वैल्यू निकालनी है. देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे की जस्ट रेसिप्रोकल नजर आ रहे हैं. ठीक है, तो मान लेते ये जो एक्सप्रेशन है इसको अपन y नाम दे देते हैं, तो ये 1/y हो जाएगा. तो यानी हमें मिलेगा y प्लस 1/y इक्वल टू 13/6. इसका एलसीएम लेंगे तो मिलेगा y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 13/6. इसको रीअरेंज करेंगे तो मिलेगा 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0. इसको फैक्टराइज करेंगे बेटा अपन, तो देखो 6 into 6 36 के दो फैक्टर जिससे 13 आ जाए, दैट इज 9 and 4. तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0. बेटा इन दोनों में से 3y कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2y माइनस 3.
यहाँ से -2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में 2y - 3। तो अब यहाँ से अपन 2y - 3 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा 3y - 2। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि y की वैल्यू या तो बेटा देखो ये एक्सप्रेशन 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो यानी y की वैल्यू 3/2 भी हो सकती है और 2/3 भी हो सकती है। सो वी कैन से दैट y इज आइदर 2/3 और 3/2, ठीक है। और y हमने किसको माना था, इस एक्सप्रेशन को माना था। चलिए अब देखो अपन सॉल्व करते हैं। अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 - x, एक बार अपन इसको 2/3 लेके सॉल्व करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर किया बेटा तो हो जाएगा x अपॉन 1 - x इक्वल टू 4/9। 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 आ जाएगा। सो वी आर गेटिंग 9x इक्वल टू 4 - 4x। So we are getting 13x equal to 4. So the value of x comes out to be 4/13. Next time बेटा इसको अपन 3/2 की इक्वेट करते हैं। अंडर रूट ऑफ x अपॉन 1 - x को 3/2 की इक्वेट किया, दोनों साइड का स्क्वायर किया तो वी गेट x अपॉन 1 - x इक्वल टू 9/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इक्वल टू 9 - 9x, यू कैन से 13x इक्वल टू 9। सो द वैल्यू ऑफ x इज 9/13। तो ये हमारी दो रूट्स होंगे इस गिवन इक्वेशन के। और मान लेते हैं अगर ये x1 है और ये x2 है, तो x1 को जब x2 से डिवाइड करेंगे तो वी आर गेटिंग 4/9। ओके, लेकिन अगर हमने इसको x2 माना और इसको x1 माना तो वी आर गेटिंग 9/4। तो इसका मतलब है बेटा x1/x2 की वैल्यू 4/9 भी हो सकती है, 9/4 भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है और हमें a² + b² अपॉन c² की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अपन रीअरेंज करते हैं। 1/b + c प्लस 1/c + a। 2/a + b को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/a + b 1/a + b। इसमें से एक 1/a + b को अपन लेफ्ट साइड ले आते हैं और 1/c + a को राइट साइड ले जाते हैं। तो देखो क्या होगा, 1/b + c minus 1/a + b is equals to 1/a + b minus 1/c + a। बेटा यहाँ पे अपने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा a + b इंटू b + c। ऊपर मिलेगा बेटा a + b माइनस b माइनस c, यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया a + b इंटू c + a। ऊपर मिलेगा बेटा c + a माइनस b। आप देख सकते हो बेटा b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, a + b से a + b कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो देखो a - c मल्टीप्लाई विथ a + c, तो वी आर गेटिंग a² - c²। c - b को मल्टीप्लाई करेंगे c + b से, तो वी आर गेटिंग c² - b²। तो बेटा अब इसको जब अपन रीअरेंज करेंगे तो वी आर गेटिंग 2c² इज इक्वल्स टू a² + b²। c² को बेटा राइट साइड भेज दो तो 2 इज इक्वल्स टू a² + b² / c²। तो a² + b² / c² की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे रखी है विच इज इन द फॉर्म ऑफ लॉग, और हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के रूट्स का स्क्वायर्स का सम करना है। ओके तो देखो सबसे पहले अपन देखो यहाँ पे इसमें बेस चेंज फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको अपन ऊपर ले आते हैं तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके तो ये फिर हमें कुछ इस तरह से इक्वेशन दिखेगी, लॉग नीचे बेटा 3 - 4x² आ रहा है। ओके और यहाँ पे लिखा रहा है बेटा 9 - 16x⁴ इज इक्वल्स टू 2 प्लस, तो ये बेटा इंटरचेंज हो जाएंगे ऊपर लाएंगे तो। अब अपन क्या करेंगे, इस लॉग को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये दोनों आपस में माइनस होंगे, दोनों का बेस सेम है, तो हम यहाँ पे लॉज ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस लॉग को अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वी आर गेटिंग 9 - 16x⁴ by 2 इज इक्वल्स टू 3 - 4x² का होल स्क्वायर। और अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो ये 3 का स्क्वायर है और ये 4x² का स्क्वायर है, यानी ये a² - b² टाइप का लिखा हुआ है, तो इसको अपन a + b इंटू a - b लिख सकते हैं, है ना बेटा। तो यहां पे देखो इसको हमने ऐसे लिख दिया, तो a - b a + b
इस टाइप में लिख दिया इसको अपन ने, डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 4x स्क्वायर का बेटा स्क्वायर। तो देखो ये एक तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक तो हम कैंसिल कर सकते हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा तो 3 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस 8x स्क्वायर, तो यानी 12x स्क्वायर इक्वल टू 3। तो x स्क्वायर की वैल्यू बेटा 3/12 दैट इज 1/4, यानी x की वैल्यू बेटा प्लस माइनस 1/2 आ जाएगी। तो यानी ये हमारे दो रूट्स आए, हमें क्या करना था, जो रूट्स आए हैं इनके स्क्वायर का सम करना। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 1/4 आ जाएगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1/4 हो जाएगा, दोनों का सम करना था, दैट इज 1/2। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से दैट आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन हमें n की वो नेचुरल वैल्यूज पता करनी है जिसके लिए ये गिवन एक्सप्रेशन एक प्राइम हो। ओके, तो देखो यहाँ पे n क्यूब माइनस 8n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 13 ये एक प्राइम नंबर है। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, ध्यान से देखिए आप, 1 प्लस 20 दैट इज 21 माइनस 8 माइनस 13 दैट इज माइनस 21। कोफिशिएंट का सम जब भी 0 होता है तो इसका 1 एक 0 है, और यू कैन से दैट n माइनस 1 इज द फैक्टर। तो इसको मैं अगर फैक्टराइज करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये n माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ n स्क्वायर प्लस 13 माइनस n स्क्वायर वी गेट माइनस 8, तो सो माइनस 7n इज विल बी देयर। तो इसको हमने कुछ इस तरह से फैक्टराइज कर लिया। तो देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हो सकता है कि n माइनस 1 1 हो और हो सकता है n माइनस 1 p हो। तो लेट्स से पहले मान लेते कि n माइनस 1 हमारा 1 है और सेकेंड केस में n माइनस 1 लेट्स से p है। तो अगर n माइनस 1 को 1 मानेंगे तो उस समय आपको n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 13 को p मानना पड़ेगा, और यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 13 को 1 मानना पड़ेगा। तो यहाँ n माइनस 1 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि n की वैल्यू 2 आएगी। अब अपन को ये चेक करना पड़ेगा क्या n इक्वल टू 2 के लिए क्या ये एक्सप्रेशन प्राइम है क्या, अगर है तो ही इसको काउंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो चलिए चेक कर लेते। 2 का स्क्वायर 4, 14 प्लस 13, 13 प्लस 14 सॉरी 13 प्लस 4 17, 17 माइनस 14 दैट इज 3। तो देखो बेटा ये प्राइम आ रहा है, यानी इसको आप कंसिडर करो। चलिए अब चेक करते हैं, 1 को इधर शिफ्ट करा तो ये आ जाएगा बेटा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो जाएगा n माइनस 3 n माइनस 4 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू बेटा यहाँ तो 3 आएगी या फिर 4 आएगी। अब ये चेक कर लेते हैं क्या 3 और 4 के लिए ये प्राइम है क्या। लेट्स से n को 3 रखा तो 3 माइनस 1 2, 2 इज द प्राइम। n की जगह बेटा 4 रखो, 4 माइनस 1 3, 3 इज द प्राइम। तो यानी ये दो वैल्यूज भी आप ले सकते हो। तो यानी कहने का मतलब है कि n की देयर आर 3 वैल्यूज दैट इज 2, 3 एंड 4। सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे बेटा हमें x एक रियल नंबर दे रखा है और इस एक्सप्रेशन सॉरी x की पावर 5 माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स की वैल्यू a दे रखी है, तो हमें x की पावर 6 की मिनिमम वैल्यू पता करनी है। चलिए करते हैं अपन, है ना। देखिए सबसे पहले ये हमें गिवन है कि x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल्स टू a दे रखा है। तो यहां से अपन ने x कॉमन ले लिया तो ये एक्सप्रेशन ऐसे कुछ आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a। ओके, और यहां से अपन कह सकते हैं कि x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू a बाय एक्स। ओके, देखिए यहाँ पे हमें x की पावर 6 की मिनिमम वैल्यू पता करनी है। तो देखो यहाँ पे x की पावर 6 प्लस 1, तो देखो ये एक्स स्क्वायर का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है, तो यहाँ पे अपन ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम a बाय एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ a बाय एक्स। ओके, नाउ हियर जब x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो वी आर गेटिंग x, 1 को x से डिवाइड करेंगे तो वी आर गेटिंग 1 बाय एक्स इंटू a। ओके, प्लस 1 को इधर शिफ्ट कर दो तो वी आर गेटिंग x की पावर 6 इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x मल्टीप्लाई विथ a माइनस 1। ओके, अगर बेटा अगर x पॉजिटिव नंबर है, अगर x पॉजिटिव नंबर है तो x और ये उस नंबर का रेसिप्रोकल, इसमें बेटा अगर अपन अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट लगाएं तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन तो हो जाएगा बेटा x प्लस 1 अपॉन एक्स बाय 2
इनका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, तो बेटा x x कट जाएगा, 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो वी कैन से दैट x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ऐसा हम तभी बोल पाएंगे जब x एक पॉजिटिव नंबर है ना। यहाँ पे x एक रियल नंबर की बात हो रही है, तो एक्चुअली यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर लिखना चाहिए था, ठीक है। तो हम कह पाते हैं कि x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड अकॉर्डिंग टू this expression is x plus 1x is greater than equal to 2. So I can say that x की power 6 is greater than equal to 2a minus 1. So according to this concept, I can say that x की power 6 की minimum value 2a minus 1 होगी, लेकिन इसके लिए देना चाहिए था कि ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो अगर हम इसको पॉजिटिव रियल माने तो हमारा आंसर b होना चाहिए, दैट इज 2a minus 1. So b will be the correct answer. Okay students, we are coming to the next question. In this question हमें बताना है कि the maximum number of right angle which can occur among the interior angles of a convex polygon of n sided where n is greater than 4. Okay, देखिए बेटा हमें मालूम है कि जो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन जो होता है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है ना। और हमें यह भी मालूम है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है। क्लियर है, ये हमें मालूम है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि अगर पॉलीगन में 4 से ज्यादा साइड्स हैं तो उसमें कितने राइट एंगल्स हो सकते हैं। ओके, सो क्योंकि देखिए अगर हमने लेट्स से क्योंकि हमें मालूम है कि कॉन्वेक्स एंगल की एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर पहला इंटीरियर एंगल 90 डिग्री हुआ लेट्स से, तो दूसरा इंटीरियर भी लेट्स से 90 हुआ, तीसरा इंटीरियर एंगल भी लेट्स से 90 डिग्री हुआ, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल भी 90 होगा, बिकॉज इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है। तो अगर मैं चौथा इंटीरियर एंगल भी अगर 90 ले लूं तो मुझे चौथा एक्सटीरियर एंगल भी 90 मिल जाएगा और इन चारों का सम ही 360 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले सारे इंटीरियर एंगल्स आने वाले सारे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 0 होगी, फिर तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो है 3 इंटीरियर एंगल को 90 डिग्री अज्यूम किया जा सकता है ना। अगर हमने 4 इंटीरियर एंगल को 90 डिग्री अज्यूम कर लिया तो उसके 4 कॉरस्पॉन्डिंग 90 डिग्री आएंगे एक्सटीरियर एंगल, उन चारों का सम 360 हो जाएगा, यानी उसके बाद जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे उनकी वैल्यू 0 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होगा इस तरह से। तो यानी अपन कह सकते हैं कि मैक्सिमम 3 इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री हो सकते हैं। So our answer must be option number B will be the correct answer. Okay students, we are coming to the next question. In this question we have given that a circle in which AB is the diameter and CD is parallel to AB. It is given to us. सर्कल का रेडियस हमें 5 दे रखा है और हमें AE into AF की वैल्यू बतानी है। AE into AF की वैल्यू हमें बतानी है और यहाँ पे AEF is a tangent. Okay. So here we know that tangent and radius are perpendicular, so this is 90 degree. Okay, and if I join let's say here if I join AC, so this is the diameter, so angle in a semicircle is also 90 degree, so this is 90 degree. Okay, so now here see here, let's say consider this angle as theta, let's say. Now as these two lines are parallel, so this is theta, so this should be theta as well. तो बेटा देखो यहाँ पे ये 90 और ये थीटा है, तो डेफिनेटली ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा आपका। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। ओके, और ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो बेटा अगर ये 90 माइनस थीटा है ना, तो ये 90 माइनस थीटा है बेटा आपका, तो डेफिनेटली ये एंगल आपका हो जाएगा, बताओ कितना होगा। दिस एंगल शुड बी 180 माइनस 90 प्लस थीटा, तो दिस एंगल शुड बी 90 प्लस थीटा। This angle is 90 plus theta. Okay, now again here that C in triangle in quadrilateral ABCD opposite angle का सम बेटा 180 होगा। तो बेटा देखो ये 90 प्लस थीटा है, तो ये जो कंप्लीट एंगल होगा इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो 90 प्लस थीटा प्लस लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, सो 90 प्लस थीटा प्लस अल्फा plus theta should be 180. So I can say that the value of alpha is 180 minus 90, that is 90,
minus 2 theta. So this alpha is nothing but 90 minus 2 theta. Okay, this angle alpha is nothing but 90 minus 2 theta. Okay, now here, so this complete angle, okay, this complete angle is of, if you consider triangle FAB, this angle is 90 degree. तो इसका मतलब ये हो कि बेटा F और इस एंगल B का सम 90 होगा. तो एंगल F और ये जो एंगल है दैट इज थीटा और 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा प्लस थीटा. ठीक है, इनका सम 90 होना चाहिए. तो देखो बेटा 90 से 90 कट जाएगा, माइनस 2 थीटा प्लस 2 सॉरी माइनस 2 थीटा प्लस थीटा इज माइनस थीटा. सो तो बेटा एंगल F हमारे पास थीटा आ जाएगा, यानी एंगल F यहाँ पे हमारे पास थीटा आ चुका है. ठीक है, एंगल F थीटा आ चुका है. चलिए अब देखो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखें यहाँ पे, तो अपन देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ABE को देखा हमने, है ना. ये डायग्राम में वापस से बना लेता हूं इधर. ये देखिए, ये F है आपका, ये आपका E है, ये A है और ये B है. तो देखो बेटा यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे ये एंगल थीटा है और यहाँ पे ये एंगल थीटा है. तो अपन कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है दैट इज AEB और ट्राइंगल AFB दोनों सिमिलर होंगे. क्यों? देखो दोनों में 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे ये एंगल थीटा है, यहाँ पे एंगल थीटा है. तो बोथ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल क्राइटेरिया. तो देखिए दोनों में एंगल A 90 डिग्री है, तो यहाँ पे A लिखा, यहाँ पे A लिखा. इस ट्राइंगल AEB का एंगल B थीटा है, AFB में F थीटा है. तो AF यहाँ पे आएगा B, यहाँ पे आएगा आपका ABE. So these two triangles are similar. Now अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बेटा, तो साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा, दैट इज AB अपॉन AF must be equal to AE by AB. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF इंटू AE, है ना बेटा. तो AB हमें डायमीटर दे रखा है, रेडियस 5 है, तो बेटा डायमीटर दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 5 दैट इज 10. तो इसका मतलब हुआ कि AF इंटू AE की वैल्यू 10 का स्क्वायर होगी, दैट इज 100. सो आवर आंसर मस्ट बी 100. सो वी कैन से दैट आवर ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन ये हमारे पास बेटा 3 इक्वेशंस दे रखी है और हमें इनमें से देखना है कि कौन सा रिलेशनशिप सही होगा. ओके देखिए हमने क्या किया, इस फर्स्ट इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दिया. तो वी आर गेटिंग x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4. और इसको जब सॉल्व करेंगे x अपॉन एक्स वाई वी आर गेटिंग 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3/4. सिमिलरली फॉर द अदर टूज, so we can write this equation as 1 upon y plus 1 upon z equal to 5/12. Similarly this one, so we can write this as 1 upon z plus 1 upon x is equals to 2 upon 3. Let's say हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गई, that is 1, 2 and 3. इन तीनों को बेटा ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर देंगे तो देखो यहाँ पे 1 upon x 2 बार आ रहा है, 1 upon y भी 2 बार आ रहा है, 1 upon z भी 2 बार आ रहा है. तो 2 टाइम्स ऑफ 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is equals to 3/4 plus 5/12 plus 2/3. So 3/4 plus 5/12 plus 2/3. यहाँ पे बेटा 12 एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ जाएगा 9 plus 5 plus 8. Okay, so we are getting 9 plus 5 that is 14, 22/12, or you can say 11/6. So 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z, we are getting 11/12. So let's say this is our equation number 4. Now here, if you subtract the equation 1 from 4, so 1 upon y and 1 upon x get cancelled, we are getting 1 upon z. So the value of 1 upon z we are getting as 11/12 minus 3/4. We take 12 as LCM, so we are getting 11 minus 9. So that is 2/12, that is equal to 1/6. So you can say that the value of z is 6. Similarly, if you subtract the equation 2 from 4th,
1 upon y and 1 upon z get cancelled. We are getting 1 upon x. So the value of 1 upon x is 11 by 12 minus 5 by 12. That is 11 minus 5, that is 6 by 12. You can say 1 by 2. So the value of x is 2. Similarly, if you subtract the equation number 3 from 4, so 1 upon z and 1 upon x get cancelled, we get 1 upon y. So the value of 1 upon y is 11 by 12 minus 2 by 3. We take 12 LCM, so 11 minus 8, that is 3 by 12, that is 1 by 4. So you can say that the value of y is 4. And it is clearly visible that is 6 is nothing but 2 plus 4. So I can say that z is equals to x plus y. Z is equal to x plus y. That is option number A will be the correct answer. Okay, we are coming to the next question. The next question is, यहाँ पे हमें एक polynomial दे रखा है, that is f of x equal to x raised to the power 15 minus 2022 x raised to the power 14, then 2022 x raised to the 13, and so on till 2022x. Then we need to find the value of f2021. So here, what we have to do here, that we need to find f2021. So in place of x, we are writing 2021. 2021 raised to the power 15, then minus sign is there. Then देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2022 को ब्रेक कर लेते हैं 2021 प्लस 1 में, और x की जगह हमें 2021 रखना है. So 2021 raised to the power 14. Now then again plus sign is there. 2022 को again हम ब्रेक कर लेते हैं, that is 2021 plus 1. Okay. Then x raised to the power 13. x की जगह बेटा 2021 रख लेते हैं 13. तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता जा रहा है और लास्ट में हमें 2022x चाहिए, है ना बेटा. तो प्लस 2022 को वापस अपन लिख लेंगे 2021 प्लस 1. x की जगह बेटा वापस 2021 रखना है. सही है. तो इस तरह से हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को ब्रेक कर लिया. तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमें मिलेगा 2021 रेस्ट टू द पावर 15 minus 2021 multiply with 2021 raised to the 14. So we get 2021 raised to the power 15 minus 1 multiply by this. So we are getting minus 2021 raised to the power 14 plus 2021 into 2021 raised to the 13. We are getting 2021 raised to the power 14 plus 2021 raised to the power 13, and so on 2021 square plus 2021. So what we observe here that these two terms get cancelled because plus minus. Again these two terms get cancelled. तो इस तरह से बेटा कैंसिल होता जाएगा प्रोसेस. सो फाइनली हमारे पास ओनली 2021 रह जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि f2021 की वैल्यू 2021 हो गई. तो दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन देखिए बेटा यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी स्क्वायर्स का सम हमें करना है. तो चलिए पहले देखिए इसको अपन रीअरेंज करते हैं. 2 की पावर x स्क्वायर माइनस 1, इस माइनस इसको अपन लेफ्ट साइड ले आते हैं. तो वी आर गेटिंग प्लस 2 रेज़ टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल टू, इसको अपन राइट साइड ले जाते हैं. तो 3 की पावर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 की पावर x स्क्वायर. तो बेटा इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1. इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2. इसको भी लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग 3 की पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर x स्क्वायर. यहाँ से बेटा 2 की पावर x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे रह जाएगा 1 बाय 2 प्लस 4. तो 1 बाय 2 प्लस 4 गिव यू 9 बाय 2. इट विल गिव यू 9 बाय 2. यहाँ से बेटा अपने 3 की पावर x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में रह जाएगा 1 बाय 3 प्लस 1, 1 बाय 3 प्लस 1. तो वी आर गेटिंग 4 बाय 3. तो अपन इसको रीअरेंज कर लेते हैं. 3 की पावर x स्क्वायर को अपन लेफ्ट साइड ले आते हैं. तो वी कैन राइट 2/3 होल रेज़ टू द पावर x स्क्वायर. नाउ 9 बाय 2 को राइट साइड शिफ्ट कर दो. So we are getting 4 by 3 multiply with 2 by 9. You can say 8 by 27 or you can say 2 by 3 the
होल क्यूब। देखो बेटा दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम होगी, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 आ रही है, तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √3 आएगी। और हमसे ये कहा जा रहा था कि ये इसके रूट्स आ गए, एक तो +√3 और एक दूसरा -√3। हमें क्या करना है, जो भी रूट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम करना है। √3 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 3 आएगा, -√3 का स्क्वायर करोगे वो भी 3 आएगा, तो दोनों का सम करेंगे तो 6 आएगा। तो यानी कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन ये हमें एक सर्कल गिवन है और ओ ए इसका रेडियस दे रखा है, सी से हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है ओ ए पर, जो कि बी पर मीट कर रहा है ओ ए को, और सी ए को जब ज्वाइन करा तो सर्कल को डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और हमसे फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है सी ए इंटू ए डी डिवाइडेड बाई ओ ए इंटू ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो देखो हमने इसके लिए क्या किया, यहाँ से हमने ओ से इस ए डी पे परपेंडिकुलर डाल दिया इस तरह से, और हमें मालूम है कि जैसे हम कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा पॉइंट पी है, सही है, और हमें मालूम है कि AP is equals to PD and which is equal to half of AD। ठीक है, ये हमें मालूम है। अब आप देखो बेटा यहाँ पे अगर आप इन दो ट्राइंगल्स को देखो ध्यान से, ट्राइंगल OPA और ट्राइंगल CBA को, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कैसे? देखिए दोनों में एंगल ए तो कॉमन है ही सही, दोनों में एंगल ए तो कॉमन है ही सही, है ना। और OPA का एंगल P 90 डिग्री है, इसका B 90 डिग्री है। तो triangle ABC is similar to triangle APO. These two triangles are similar by angle criteria। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बेटा इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा। तो यानी अपन कह सकते हैं कि AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू OA अपॉन AC, OA अपॉन AC। ठीक है बेटा, ये हम कह सकते हैं। और यहाँ पर मैं AP को रिप्लेस कर सकता हूँ AD/2 से। इस AP को आप रिप्लेस कर दो किससे? AD/2 से। तो यानी हमारे पास देखिए बेटे क्या हो जाएगा, AD/2 टाइम्स ऑफ AB इज इक्वल्स टू OA/AC। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AD.AC डिवाइडेड बाय OA.AB इज इक्वल्स टू 2। तो यानी यही वही एक्सप्रेशन है जो हमें चाहिए था। तो हम कह सकते हैं कि इस गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 होगी। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे रखी है विच इज इन द फॉर्म ऑफ लॉग। इसके जो दो रूट्स हैं उनको x1 और x2 माना गया है और x2 x1 से बड़ा है, तो हमें tan x1 प्लस x2 की वैल्यू पता करनी है बेटा। तो देखिए जब भी यहाँ पे पावर में लॉग दिखे तो यू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो हमने दोनों साइड लॉग ले लिया बेटा, तो हमें मिलेगा log x प्लस 1, ये आगे आ जाएगा, इंटू log x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी log ले लिया तो बेटा log 100 की वैल्यू 2 होती है, और अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो इसको अपन ऐड करके लिखते हैं। क्लियर? सो नाउ लेट्स से log x प्लस 1 को मैंने y मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, तो y इंटू वाई, तो ये बेटा y स्क्वायर हो गया विच इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। तो वी आर गेटिंग y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। -2 के बेटा फैक्टर करो जिससे माइनस होना जाए, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन होकर आ जाएगा y माइनस 2 y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा y की वैल्यू या तो 2 आएगी या फिर -1 आएगी। y किसको माना था हमने? log x प्लस 1 को माना था, एंड बाय डिफॉल्ट बेस 10 होता है बेटा, है ना। तो यानी log बेस 10 x प्लस 1 की वैल्यू बेटा 2 है और -1 है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि x प्लस 1 की वैल्यू 10 की पावर 2 दैट इज 100 हो सकती है, या x प्लस 1 की वैल्यू 10 की पावर -1 दैट इज 1/10 हो सकती है। ठीक है, तो यानी अपन कह सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ तो 99 बिकॉज 100 माइनस 1 दैट इज 99, या फिर 1/10 माइनस 1 दैट इज -9/10। और क्वेश्चन में दे रखा था बेटा कि x2 बड़ा है, तो यानी ये हमारा x2 हुआ और ये हमारा x1 हुआ। हमें क्या करना है? 10 टाइम्स ऑफ x1, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 टाइम्स ऑफ x1 तो बेटा -9 हो जाएगा, और x2 आपका 99 था, सो -9 प्लस 99 तो प्लस 90, तो इसका आंसर बेटा 90 आएगा। 90 इज द करेक्ट आंसर। Okay students, we are coming to the next question. The numerical value of this given expression. Okay, so here what we assume that, let's consider this expression as a and this expression as b. So here if you add a plus b, you will find that
5y get cancelled, 3z cancel, we get 2x. So the value of a plus b is 2x. Okay, तो बेटा अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखो तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से लिखा हुआ है 1/x क्यूब, इसको हमने a बोला तो ये बेटा ये हमारा a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये जो 6x है इसको मैं बोल सकता हूँ 3 इंटू 2x, ओके, और 2x इज नथिंग बट a प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा एक तरह से 3a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ a इंटू बी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये इट इज नथिंग बट इट इज द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी द होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, तो यानी तो 1/x क्यूब multiply with a plus b the whole cube, and a plus b is nothing but 2x, so 1/x cube into 8x cube, so x cube get cancelled, we are getting as 8 as answer, तो हमारा आंसर बेटा इसमें 8 होगा। Okay students, we are coming to the next question. The next question is हमें यहाँ पे दे रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC और P ट्राइंगल के तो बाहर है लेकिन एंगल ABC के अंदर है ना, और यहाँ पे हमें दे रखा है कि H1 H2 H3 डिस्टेंसेज हैं ऑफ द साइड BC CA AB फ्रॉम द पॉइंट P, है ना, और हमें ये भी दे रखा है कि H1 माइनस H2 प्लस H3 की वैल्यू 6 है। तो ट्राइंगल ABC के एरिया को अगर हम λ√3 बोलें तो हमें ये लैम्डा की वैल्यू पता करनी है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को अपन, है ना। ये हमारा ट्राइंगल ABC बना लिया पहले तो, जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इन साइड्स को हमने बढ़ा दिया। मान लेते ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, और P से साइड्स का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, ओके। BC का डिस्टेंस को हमने H1 बोला है, BC के डिस्टेंस को हमने H1 बोला है तो ये हमारा H1 है। CA के डिस्टेंस को हमने H2 बोला है, CA के डिस्टेंस को हमने H2 बोला है तो ये हमारा H2 है, और ये H3 है एज पर द क्वेश्चन। ओके, नाउ हियर और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को हम फिलहाल A मान लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को हमने A अज्यूम कर लिया फिलहाल, ओके, A and A, okay. Now here let's say first of all I join AP, तो देखो हम क्या करते हैं, लेट्स से इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं अपन, लेट्स से इसको मैंने BP को ज्वाइन कर दिया, AP को ज्वाइन कर दिया, CP को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो लेट्स से सबसे पहले हम ट्राइंगल ABP का एरिया निकालते हैं, है ना। तो ट्राइंगल ABP का एरिया, हम ट्राइंगल का एरिया जानते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे हमारा AB बेस है और हाइट H3 हो जाएगा बेटा, तो हाफ A इंटू H3। सिमिलरली लेट्स से ट्राइंगल BPC का एरिया निकालते हैं अपन, ट्राइंगल BCP का एरिया हो जाएगा बेटा हाफ, BC को बेस माना उस पर हाइट बेटा H1, तो हाफ A इंटू H1। नाउ ट्राइंगल ACP का एरिया भी निकालते हैं अपन, तो ACP का एरिया हो जाएगा बेटा हाफ A इंटू H2, AC हमारा बेस उस पर हाइट H2। अब देखो बेटा अगर हम ABP और BCP के एरिया को ऐड कर दें, ABP और BCP के एरिया को ऐड कर दें और उसमें से ACP हटा दें तो हमें ट्राइंगल ABC का एरिया मिल जाएगा। तो यानी जो ट्राइंगल ABC का जो एरिया है ना बेटा, ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो ट्राइंगल ABP का एरिया और BCP का एरिया आप ऐड करो और उसमें से माइनस कर दो ACP का एरिया, ठीक है। ABC का एरिया आप जानते हो सर √3/4 साइड स्क्वायर होता है, और इनके एरिया पर निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखो हाफ A H3 हाफ A H1 माइनस हाफ A H2, क्लियर। तो देखो यहाँ से अपन हाफ A कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा H3 प्लस H1 माइनस H2, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 6। तो इसको मैं 6 से रिप्लेस कर देता हूँ, 6 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये एक A से एक A कैंसिल आप कर सकते हो, एक A से एक A कैंसिल कर दिया अपन, है ना। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि हमारे पास जो A यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है दैट इज A, वो आ जाएगी हमारे पास 4 इंटू 3 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय √3। तो A की वैल्यू आ जाएगी बेटा 12
डिवाइडेड बाय √3। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम जानते ही हैं, √3/4 साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर बेटा 3 हो जाएगा। देखो 4 3 जा 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आया 12√3। और 12√3 को λ√3 से कंपेयर करोगे तो अपन कह सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू बेटा 12 आ रही है, तो इसलिए हमारा आंसर 12 होगा। ओके स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें बेटा ट्राइंगल एबीसी में जी सेंट्रोइड दे रखा है, जीए की वैल्यू 2√3, जीबी 2√2, जीसी 2 दे रखा है। तो हमें ट्राइंगल एबीसी को λ√2 से रिप्रेजेंट कर रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी λ√2 से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये ट्राइंगल बना लिया, पहले तो ये हमारा ए बी सी और ये हमारा जी पॉइंट दैट इज सेंट्रोइड। तो बेटा देखो ये ज्वाइन कर दो इसको, तो आपसे जी से ए का डिस्टेंस हमारा 2√3 है, जी से सी का डिस्टेंस 2 है और जी से बी का डिस्टेंस 2√2 है। और हमें मालूम है कि जो मीडियन होता है वो सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर मैं इस मीडियन को अगर आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये 2:1 का रेशियो होना चाहिए, तो यानी ये √3 हो जाएगा। इसको भी अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये 2√2 है, तो ये √2 हो जाएगा बेटा। और इसको भी अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये 1 हो जाएगा। तो लेट्स से इसको नाम दे देते हैं डी, इसको ई, इसको एफ। तो यहाँ से हमारे पास जो मीडियन की लेंथ आई, मीडियन की जो लेंथ आई वो आ रही है हमारे पास, देखिए मीडियन की जो लेंथ आ रही है, एक तो आ रही है 3, एक आ रही है 3√3, एक आ रही है 3√2। ये हमारे पास मीडियन की लेंथ आ गई, ठीक है। और अगर आप इस मीडियन की लेंथ को अगर आप ध्यान से देखो तो देखो अगर 3√3 का स्क्वायर करोगे तो 27 आ रहा है, और इन दोनों के स्क्वायर का सम करो दैट इज 9 + 18, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो यानी अगर मैं मीडियन की इस ट्राइंगल की जो मीडियन है उसकी साइड से अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा तो डेफिनेटली वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस वैलिड हो रहा है, 3√3, 3 एंड 3√2। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया आएगा दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये इस ट्राइंगल के जो साइड्स इस ट्राइंगल के जो मीडियंस हैं उससे जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया ये आ रहा है ना। तो दैट इज 9√2/2, ये मीडियन से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया है। और हमें ये मालूम है कि मीडियन से जो बनने वाला जो ट्राइंगल है ना, उसका एरिया का अगर आप 4/3 निकालोगे तो वो इस ओरिजिनल ट्राइंगल का एरिया होता है। तो अगर मैं इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया रिप्रेजेंट करेगा। सो दैट इज द कंसेप्ट। सो यहाँ पे देखो 3 से 9 कट गया 3 टाइम्स, और ये 4 से 2 कट गया 2 टाइम्स। सो इसको अपन ने देखा तो 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो 6√2 आ गया बेटा। ट्राइंगल एबीसी का एरिया बेटा 6√2 आ गया। तो 6√2 को अगर λ√2 से कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू बेटा 6 आएगी, तो इसलिए इसका आंसर 6 होगा। ओके स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे द नंबर ऑफ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स m, n सच दैट, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे m और n नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो ऐसे कितने पेयर होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? देखिए चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो m² में से n² माइनस करेंगे अपन, है ना, तो ये हो जाएगा m² - n², क्लियर। और ये हो जाएगा +n - m, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा m - n विच इज इक्वल टू 10। तो m² - n² को अपन m - n m + n लिख सकते हैं, दोनों में से m - n कॉमन, तो ब्रैकेट में रह जाएगा बेटा m + n इधर -1 आएगा, -1, ओके, इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे भी 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, तो ये 10 × 1 लिख सकते हो और 2 × 5 लिख सकते हो। क्योंकि m और n नेचुरल नंबर्स हैं तो इसलिए अपन इनको पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन में लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें m और n नेचुरल नंबर दे रखे हैं। तो लेट्स से एक बार हमने मान लिया कि डेफिनेटली m + n - 1 बड़ा होगा कंपेयर टू m - n, तो अपन m + n - 1 को 10 मान लेते हैं। तो यानी एक तरह से कहेंगे कि m + n की वैल्यू 11 आ गई और m - n की वैल्यू 1 आ गई। और ऐसा भी हो सकता है कि m + n - 1 5 हो, तो उसके अकॉर्डिंग m + n बेटा 6 हो जाएगा और m - n 2 हो जाएगा। तो इसको अगर अपन ऐड करें तो वी आर गेटिंग 2m = 12, तो यानी m = 6 आ जाएगा।
6 प्लस समथिंग इक्वल टू 11, तो n बेटा 5 आ जाएगा। एक पेयर तो ये बना आपका, दोनों को ऐड करो बेटा, तो 2m इक्वल टू 8, तो यानी m की वैल्यू बेटा 4 आ जाएगी, तो n2 आ जाएगा। तो बेटा दो पेयर आ रहे हैं, 6,5 और 4,2, so we can say that our answer must be 2. So 2 is the correct answer. हो गया। Okay students, we are coming to the next question. The number of real values of n for which under root of 120 minus root n is an integer. देखिए हमें ये इंटीजर चाहिए आपको, है ना। तो n की कितनी रियल वैल्यूज हो सकती है जिसके लिए एक इंटीजर आए, ठीक है। देखो तो एक्चुअली अगर आप इसको इंटीजर चाहते हो कि ये एक इंटीजर हो, तो डेफिनेटली ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, सीधी सी बात है। और क्योंकि ये वैल्यू 120 माइनस रूट एन डेफिनेटली 11 के स्क्वायर से तो बड़ी है ना, ठीक है, सॉरी 11 के स्क्वायर से छोटी है, सॉरी, बिकॉज 121 11, ओके। तो ये वैल्यू 11 के स्क्वायर से तो छोटी है, तो यानी हम इस पूरे एक्सप्रेशन को हम 0 से लेके 10 तक का स्क्वायर बना सकते हैं, है ना। इसको हम चाहे तो इस एक्सप्रेशन को 0 बना सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को अपन 1 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अप टू 10 का स्क्वायर, दैट इज 100, इतना बना सकते हैं मैक्सिमम। क्योंकि अगर अपन उससे ऊपर जाएंगे, है ना, तो वो जा नहीं सकते, क्योंकि ये वैल्यू 120 यानी कि 121 से छोटी है। तो यानी हाउ मेनी वैल्यूज, देखिए 0 आपका क्या है, 0 का स्क्वायर है, 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो यानी 0 से लेके 10 तक यानी 11 वैल्यूज। तो यानी देयर आर टोटल 11 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n फॉर विच दिस इज एन इंटीजर। सो हमारा आंसर बेटा 11 होगा, 11 इज द करेक्ट आंसर। Okay students, we are coming to the next question. The next question is the number of cuboids with unequal integer side length in an arithmetic progression such that volume is less than 25. देखिए जो हमारे पास क्यूबॉइड की जो साइड है वो एक इंटीजर है और वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए और वॉल्यूम 25 से कम होना चाहिए, बोला जा रहा है। तो देखिए अपन ने सबसे शुरुआत करी लोवेस्ट से, 1, क्लियर। सो 1 और डिफरेंट लेंथ भी होनी चाहिए, तो पहली लेंथ ले ली 1, 2 एंड 3, ओके। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स मस्ट बी सेम। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस सेम चल रहा है, दैट इज 1 का, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका वॉल्यूम जो आएगा बेटा वो 6 आएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म को 1 रखा, कॉमन डिफरेंस अब 2 का रखते हैं, तो 1, 3, 5, ठीक है ना, 5 3 15, तो ये वॉल्यूम बेटा 15 आ जाएगा, वो भी पॉसिबल है। अब अपन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 का रखा, कॉमन डिफरेंस 2 का रखा, अब कॉमन डिफरेंस 3 का रखते हैं, तो 1, 4 और 7, तो बेटा यहाँ पे वॉल्यूम 28 आ जाएगा, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी ये दो पॉसिबिलिटीज़ आ रही है हमारे पास। चलिए यहाँ पे मैंने डिफरेंस 1 का रखा था, यहाँ पे डिफरेंस 2 का रखा था। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, जरूरी थोड़ी मैं 1 से स्टार्ट करें, हम 2 से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। अब लेट्स से कॉमन डिफरेंस 1 का रखा, तो 2, 3, 4, तो यहाँ पे बेटा वॉल्यूम 24 आ रहा है, जो कि 25 से छोटा है, तो ये इसको भी आप ले सकते हो। तो अगर कॉमन डिफरेंस आपको मैंने 2 का चलाया, तो 2, 4 और 6, बेटा ये 2, 4 जा 8, 48 आ जाएगा, तो बस इसमें यही केस पॉसिबल होगा। तो अब आगे चलते हैं, लेट्स से अगर मैंने फर्स्ट साइड 3 ली और कॉमन डिफरेंस 1 लिया, तो 3, 4 और 5, तो अगेन वो भी 25 को क्रॉस कर जाएगा, तो यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। तो देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज, दैट इज 1, 2, 3, 1, 3, 5 और 2, 3, 4। सो हमारा आंसर बेटा 3 होगा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन हमें ए और बी बेटा रियल नंबर दे रखा है और ये दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8a माइनस 14b प्लस 65 की वैल्यू 0 है। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देखो ये ए स्क्वायर प्लस 8 से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो ये ए प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से प्लस 16 एक्स्ट्रा जनरेट होगा, तो माइनस 16 कर दिया। बी स्क्वायर माइनस 14b से हम इसको बनाते हैं बी माइनस 7 का होल स्क्वायर, यहाँ से 49 जनरेट होगा, तो माइनस 49 और ये 65 एज इट इज। इस गिवन एक्सप्रेशन को हमने ऐसे लिख दिया। अगर आप देखोगे कि माइनस 16 और माइनस 49, तो ये बनता है बेटा माइनस 65, ये प्लस 65 को कैंसिल कर देगा। तो यानी हमारे पास फाइनली ये एक्सप्रेशन आया ए प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और क्योंकि ए और बी बेटा रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर का स्क्वायर यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि दोनों की दोनों टर्म 0 हो। तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस 4 शुड बी 0, तो यानी ए की वैल्यू -4 होगी, बी माइनस 7 शुड बी 0, तो बी की वैल्यू बेटा 7 होगी।
तो ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा बेटा 16 प्लस 49 दैट इज 65। तो हमारा आंसर बेटा 65 होगा। 65 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बेटा हमें एक रियल नंबर दे रखा है और ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 2 प्लस ए प्लस 1 की वैल्यू 0 दे रखी है। तो हमें ए की पावर 2022 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 2022 की मिनिमम न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी कितनी होगी। देखिए देखिए बेटा, यहाँ से एक्चुअली देखिए ए की पावर 5 को अगर मैं 1 मानूं लेट से, है ना, तो ए की पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो मुझे मिलेगा ए माइनस 1 इंटू ए की पावर 4 ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 2 प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, तो अब इसने ये कहा कि यहाँ पे हमारा ए एक रियल नंबर है। ठीक है, तो ए एक रियल नंबर, देखो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से जो रूट्स आएंगे दैट इज नॉट रियल। ठीक है, तो रियल रूट तो आपको बेटा ए माइनस 1 से मिलने वाला है। तो यानी ए माइनस 1, देखो अगर ये 0 है तो मैंने क्या किया, दोनों साइड ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब देखो, अब ए माइनस 1 भी 0 हो सकता है, तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू 1 निकल के आएगी। ए की वैल्यू 1 निकल के आएगी, बिकॉज यहाँ पे देखा है कि ए इज अ रियल नंबर। देखो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से जो रूट्स आएंगे दैट इज नॉट रियल, दे आर इमेजिनरी। तो अगर हमें रियल रूट्स चाहिए तो डेफिनेटली ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू 1 हो गई, इतना हम जानते हैं। बस फिर हमें ये सॉल्व करना था, तो यहाँ पे आप बेटा ए की जगह 1 पुट कर दो। 1 की पावर 2022 तो 1 ही आएगा, 1 की पावर 2020 तो अगेन 1 ही आएगा, तो बेटा इसका आंसर तो 2 आएगा। तो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 2। ओके स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बेटा हमें ए की वैल्यू 1 दे रखी है और बी सी डी ग्रेटर देन 0 है। तो कहने का मतलब है कि ए बी सी डी ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। और हमें ये कंडीशन दे रखी है कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस डी की पावर 4 ए बी सी डी के बराबर है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी है। देखिए बेटा, तो अगर मैं ए की पावर 4, बी की पावर 4 और सी की पावर 4 और डी की पावर 4 के लिए ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाऊं, तो इनका ए एम हो जाएगा बेटा ए की पावर 4, बी की पावर 4, सी की पावर 4, डी की पावर 4, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स should be greater than equal to 4th root of a raised to the power 4, b raised to the power 4, c raised to the power 4, d raised to the power 4। ठीक, सो नाउ हियर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे, ये 4th रूट इन पावर 4 को कैंसिल कर देगा, तो हमें मिलेगा a की पावर 4, b की पावर 4, c की पावर 4, d की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a b c d। बट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये तो 4 a b c d के बराबर है, तो यानी ये एक्सप्रेशन 4 ABCD के बराबर है। तो हमें जानते हैं इक्वलिटी तभी होल्ड करती है व्हेन ऑल द टर्म्स आर इक्वल। इक्वलिटी विल होल्ड व्हेन ऑल द टर्म्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि कह सकते हैं कि a की पावर 4, b की पावर 4, c की पावर 4, d की पावर 4 ऑल आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि सभी की सभी इक्वल होंगे, दैट इज a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d इक्वल टू 1। तो बेटा 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 ही आएगा, तो ये 1 हो गया। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इसका टोटल बेटा 4 आएगा, तो इसलिए हमारा आंसर 4 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बेटा एक सर्कल दे रखा है विच इज इंस्क्राइब्ड इन ऑक्टागन। ओके, ऑक्टागन इज अ पॉलीगन हैविंग 8 साइड्स, और a and p आर द एरिया ऑफ द ऑक्टागन एंड p इज द पेरीमीटर ऑफ द ऑक्टागन एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी r इंटू पी बाय ए की। देखिए हम जानते हैं कि अगर किसी भी पॉलीगन के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड होता है तो हम कह सकते हैं कि जो पॉलीगन का जो एरिया होता है ना बेटा, एरिया ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू दैट इज रेडियस इन रेडियस मल्टीप्लाई विद द सेमी पेरीमीटर। तो जो सेमी पेरीमीटर होता है वो तो पेरीमीटर का हाफ होता है, सिंपल। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि r इंटू पी बाय ए की वैल्यू 2 आएगी, तो इसलिए हमारा आंसर बेटा 2 होगा। ओके स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन हमें दे रखा है कि बेटा ABC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और यहाँ पे दे रखा है कि PQ एंड RST आर द पैरेलल। PQ और RST पैरेलल हैं,
और हमें एंगल सी पी क्यू 40 डिग्री दे रखा है, ये 40 डिग्री दे रखा है, तो हमें एंगल बी ए टी निकालना है, बी ए टी, दिस एंगल, okay, this angle we need to find out. This is C here, okay. So here let's see, as these two lines are parallel, so this is 40, so this should be 40. Now as ABC is an equilateral triangle, so this should be 60. Now by angle sum property you can say that this angle, that is 40 and 60, that is 100, so this should be 80 degree. Now अगर ये 80 डिग्री है तो बेटा ये भी 80 डिग्री होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और क्वेश्चन में गिवन है कि बेटा AS और ST बराबर है, ये दोनों लेंथ बेटा बराबर है, तो अगर ये 80 है तो यानी बेटा ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, है ना। तो 180 में से बेटा 80 चला गया तो बचा 100 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो बेटा ये 50 हो जाएगा, ये एंगल आपका 50 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा इसे, बिकॉज इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपसे पूछा जा रहा था BAT यानी कि 60 + 50, तो बेटा ये जो BAT जो एंगल होगा वो आपका 110 होगा, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा 110 इज द आंसर। Okay students, we are coming to the next question. The nth term of the sequence is given by this expression. तो हमें 1/T1 + 1/T3 1/T5 की वैल्यू पता करनी है। तो चलिए पहले n की जगह T1 पुट कर, n की जगह पहले 1 पुट कर दिया, तो 1 + -1⁻1, तो ये -1 आएगा, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, तो ऊपर तो 1 आएगा, नीचे आ जाएगा बेटा 3 + 1 दैट इज 4। सेम वे अगर बेटा T3 निकालेंगे तो -1⁻3 तो -1 आएगा, तो वापिस ये 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा नीचे, n की जगह 3 रखना है, 3 × 3 = 9, 9 + 1 दैट इज 10। सेम में बेटा T5 निकाला तो -1�5, तो बेटा ये 1 आएगा, -1 + 1 अगेन 0 हो जाएगा, तो 1/3 × 5 15 16, तो बेटा 16 आ जाएगा नीचे, है ना, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, और हमसे इनके रेसिप्रोकल का सम पूछ रहा है, तो 1/T1 तो बेटा 4 हो जाएगा, 1/T3 बेटा 10 हो जाएगा, और 1/T5 बेटा 16 हो जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो बेटा 30 आ रहा है, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर 30 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बेटा हमें 7 हेक्सागन दे रखे और हर एक हेक्सागन की साइड 1 है, तो हमें PQR जो ट्राइंगल है उसका एरिया A√3 दे रखा है, तो हमें A की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो अगर इसको सिमेट्री से देखें अपन ध्यान से, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, PQR रिप्रेजेंट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हमें इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना ले दे के, है ना। तो पहले अपन इसकी साइड निकाल लेते हैं। देखिए अपन एक चीज़ देखें ध्यान से, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं इस तरह से, तो ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड होगा, तो अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड निकाल लेते हैं, है ना। तो बेटा देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, तो ये तो 1 है, इसको नाम दे दो लेट्स से A, तो R से A का डिस्टेंस तो 1 हो गया, है ना, बिकॉज इट इज़ अ साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेट्स सी इसको B नाम दे देते हैं, तो बस हमें A से B का डिस्टेंस निकालना है, तो चलिए अपन A से B का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। मैं इस पार्ट को सेपरेट आउट करूँ, इस वाले पार्ट को, दिस वन, तो ध्यान से देखो बेटा ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहाँ से भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो ये 1 है तो बेटा ये भी 1 हो जाएगा। अच्छा देखो ये हेक्सागन का जो एंगल होता है ना, टोटल 120 होता है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो तो बेटा ये 60 हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके आप ये साइड निकाल सकते हो, तो ये कॉस लगा लो, ये बेस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस 60, इसको x नाम दे दिया, तो x/1, cos 60 बेटा 1/2 होता है, तो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू हाफ आ जाएगी, तो ये बेटा हाफ हो जाएगा, सेम वे ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये पूरा डिस्टेंस 1/2 + 1/2 + 1, तो बेटा टोटल डिस्टेंस 2 हो जाएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस 2 हो गया। तो यानी ये जो ट्राइंगल PQR जो बन रहा है उसका एल्टीट्यूड 3 हो गया, उसका एल्टीट्यूड 3 हो गया, और एल्टीट्यूड जो हो गया वो 3 हो गया। इस ट्राइंगल PQR का जो एल्टीट्यूड है वो 3 हो गया, और एल्टीट्यूड होता है √3/2 टाइम द साइड, दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से बेटा साइड आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय √3। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड की साइड आ चुकी है 6/√3। तो अब एरिया निकालना है, तो एरिया तो होता है सर √3/4, साइड का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 जा 12, 12 से 36 कट गया 3 टाइम्स, तो हमारे पास ये आ गया बेटा 3√3।
तो ट्राइंगल PQR का एरिया हमारे पास 3√3 आ गया। इसको अपन a√3 से कंपेयर करें तो a की वैल्यू हम 3 बोल सकते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर बेटा 3 होगा। ओके स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। देखिए यहाँ पे दे रखा है हमारे पास दो रियल नंबर है m और n, और m और n दोनों जीरो नहीं है बेटा, और ये भी दे रखा है कि mn की वैल्यू m-n के बराबर है। तो हमें इस गिवन एक्सप्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी है। तो चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें फाइंड करना है m/n प्लस n/m माइनस mn, है ना। तो बेटा यहाँ पे हमने देखो mn इसका एलसीएम ले लिया, ऊपर आ जाएगा बेटा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस mn, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। और देखो यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, mn एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे जाएगा माइनस mn का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय mn, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ओके, तो यहाँ पे देखिए अपन इस mn को रिप्लेस कर सकते हैं m माइनस n से, इस mn को रिप्लेस कर सकते हैं m माइनस n से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस इस mn को रिप्लेस कर दिया मैंने m माइनस n से, ठीक। तो देखो यहाँ पे यह आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसको ओपन करो तो आएगा माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ट्वाइस mn डिवाइडेड बाय mn। तो बेटा m स्क्वायर से m स्क्वायर कट गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, 2mn डिवाइडेड बाय mn दैट इज 2। तो इसलिए इस गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू बेटा 2 आएगी, तो हमारा आंसर 2 होगा। थैंक यू।